A very good morning, students. As you all know, because of Corona, all of us are in a state of mixed emotions as to what is going to happen with the exams because syllabus is deducted and we don't know anything about the new paper pattern. So this is the first time the board has shared a model test papers with us. So I'll be telling you that in which format are you going to get your paper of 9th class of English this year. ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस करोना पेंडेमिक. सो आई स्टार्ट माई वीडियो. आपका जो सेक्शन ए है जो रीडिंग का होता है जिसके अंदर आपको अनसीन पैसेज वगैरह आते हैं वो आपका आएगा 16 मार्क्स का. तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं एक बार रीड करके और बता देती हूँ आपको ताकि आपको ऐसा समझ में आता रहे कि क्या क्या कैसे कैसे आपके क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है और कहा गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. So Surya Singh, Prince of Manipur, once came to the city of Delhi on business, but it was secret. He did not bring any servant with him. This explained why a man like the prince was travelling alone. On the way, he saw a man who was weak and tired. The man was sitting beside the road. Which way are you going? Good sir, was the reply. I am going to Delhi and must be there before night. But I shall never reach the city because I am tired. Surya Singh got off the horse and told the man to get on it instead of him. The man seemed to be waiting for this offer and he gladly got to the horse. Surya Singh walked beside him. At the city, he asked the man to get down. The man looked surprised. Why should I get off my horse? He said. ठीक है, तो एक छोटा सा आपको स्टोरी फॉर्म के अंदर एक पैसेज दे दिया गया एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो द पैसेज. तो जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है व्हाई डिड सूर्य सिंह कम टू दिल्ली. 1 नंबर का है. आपको 1 मार्क का जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्लीज़ ट्राई टू आंसर इट अप्रॉक्सीमेटली इन 1 or 1.5 लाइन ओनली, है ना. यू हैव टू राइट आंसर्स टू द पॉइंट. सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर डिड सूर्य सिंह मीट द मैन. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मैन डूइंग. फोर्थ क्वेश्चन इज हु वाज द प्रिंस ऑफ मणिपुर. फिफ्थ इज डिड द मैन गेट ऑफ द हॉर्स. यू हैव टू गिव योर आंसर इन नो और येस ओनली. सिक्स क्वेश्चन इज फाइंड द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द. तो मतलब आपको ऑपोजिट भी पूछा जा रहा है तो दैट मीन्स यू शुड हैव अ वेरी इन्हांस्ड वोकैबुलरी. आपको ऑपोजिट साइनोनिम्स ये सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. फिर फाइंड द वर्ड्स इन द पैसेज विच मीन्स अ सॉवरेंस एंड अ हैप्पीली 2 मार्क्स का. सो टोटल ये आपका जो पैसेज है वो 9 मार्क्स का जो आपका पैसेज है वो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आ रहा है. सेकेंड क्वेश्चन के अंदर दोबारा एक पैसेज है. Again, you have to read the passage and answer the following questions. ठीक है, they have given the passage that penicillin is one of the most useful drugs invented by man. With its help, we can heal wounds caused by bacteria which cannot otherwise be healed. To begin with, a very few people were interested in it. Since penicillin could save wounded soldiers, it could be helpful in war, and so they all decided to encourage the process of its manufacture. Vast factories were set up for preparing in lives of hundreds and thousands of soldiers were saved with its help. Penicillin was introduced into the stream of human blood, acts as an aid to those parts which are always fighting the deadly germs. It has not power of over every kind of bacteria, but certain kinds of can be destroyed by penicillin in a great majority of cases. तो ये आपका एक और अनसीन पैसेज है. अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो है व्हाट आर द चीफ यूजेस ऑफ पेंसिलिन. हाउ डज पेंसिलिन एक्ट इन ह्यूमन बॉडी. व्हाट वाज डन फॉर प्रिपेयरिंग इट. नेम द मोस्ट यूजफुल ड्रग. कैन पेंसिलिन डिस्ट्रॉय ऑल काइंड्स ऑफ जर्म्स. यू हैव टू राइट इन येस एंड नो. कैन पेंसिलिन डिस्ट्रॉय इज इट नॉट इट हैज़ नॉट द पावर डैश. टू व्हाट डज इट हियर रेफर टू. ये तुमको बताना है. Find the words from the passage which means a substance used in medicine, something that has been found out. तो 8 मार्क्स का आपका ये पैसेज हो गया. तो इतना का आपका ये अनसीन पैसेजेस आ गए ना जिसके अंदर ये मार्क्स तो कहीं जाने नहीं चाहिए. इतने ईजी आपको पैसेजेस आएंगे और इतने सिंपल आपके लिए क्वेश्चन आएंगे. यू जस्ट हैव टू रीड द पैसेजेस thoroughly and answer the questions. Please see that the answers are written in the proper word limit according to the marks. सेक्शन बी में आ जाता है. सेक्शन बी भी जो है 16 मार्क्स का हमारा. सेक्शन बी के अंदर क्या है राइटिंग. तो इसके अंदर आपके जो लेटर्स है ईमेल्स नोटिस जो पैराग्राफ फॉर्मेशन वो सब है
वो हमारे सेक्शन बी के अंदर आ जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का आएगा विच विल बी द 15th क्वेश्चन ऑफ अ पेपर, वो कहेगा इमेजिन यू आर अनिल लिविंग इन जयपुर, योर फ्रेंड राकेश हैज़ फेल्ड इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन दिस ईयर, राइट अ लेटर एक्सप्रेसिंग योर सिंपैथी टू हिम, यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट। सो ये आपको एक नॉर्मल एक इनफॉर्मल लेटर अपने फ्रेंड को लिखना है जिसमें आपको उससे सिंपैथी जाहिर करनी है क्योंकि वो फेल हो गया। अब आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब आपको ये हेल्प पॉइंट्स दिए होते हैं ना, जब आपको पॉइंट्स दिए होते हैं यू मे टच, तो आपको उन सारे पॉइंट्स को यूज़ करना है ना। उन सारे पॉइंट्स आपका एक एक सेंटेंस जो आपके लेटर के अंदर आना चाहिए। इसके साथ ऑप्शन में आपको एक और क्वेश्चन आता है, यू आर अशोक अनीता ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर, राइट अ फॉर्मल ईमेल लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एट प्रिंसिपल GSS JOD@gmail.com रिक्वेस्टिंग टू अरेंज अ लेक्चर ऑन हाउ टू यूज़ कंप्यूटर। तो इसमें आपको मेल बनाना है, आप जब भी ईमेल बनाते हो आपको बॉक्स में बनाना है, फिर टू CC BCC, और जैसे उसके अंदर आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट देखना और जैसे आप लेटर लिखते हो वैसे आपको उसके अंदर लिख देना है। तो ये दोनों आपके ऑप्शंस के अंदर, आप इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हो, आप ईमेल लिख सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 15th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन के अंदर आएगा, योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यू हैव बीन आस्क्ड टू डिलीवर अ स्पीच ऑन दिस प्रोग्राम, सो राइट अ स्पीच इन 60 to 80 वर्ड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट यूजिंग द फॉलोइंग आउटलाइंस। आपको आउटलाइंस दी हुई है, आपको ये सारे आउटलाइंस यूज़ करना है, लेकिन आपको स्पीच का जो फॉर्मेट है वो ध्यान में रखना है। जब हम स्पीच का जो फॉर्मेट होता है, हम स्पीच जब स्टार्ट करते हैं तो हम पहले जो हमारे गेस्ट होते हैं उनको ग्रीट करते हैं, हम उनको थैंक्स करते हैं जिन्होंने हमें मौका दिया वहाँ खड़े होने के लिए, हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, हम किस टॉपिक पे बोलने वाले हैं हम वो बताते हैं, एंड देन वी स्टार्ट विद द स्पीच, और लास्ट में हम थैंक यू ज़रूर कहते हैं ना। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू द प्रिंसिपल मैम, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड ऑल माई डियर फ्रेंड्स वो सिटिंग हियर। तो ऐसे करके आप स्पीच स्टार्ट करोगे। फिर माई सेल्फ this and this from class 9th I am standing here to present my views on the topic the world environment day, और आपको स्पीच स्टार्ट कर देनी है और 60 to 80 वर्ड्स के अंदर लिखना है। तो आपके आधे से ज़्यादा वर्ड्स तो यहाँ पे सेल्यूटेशन ही यूज़ कर लेता है, सो दैट्स वेरी इजी टू राइट अ स्पीच। ओके, नाउ स्पीच के बाद में इसके साथ आपके ऑप्शन में स्पीच आ रहा है। स्पीच के साथ ऑप्शन में आपके आएगा, यू आर सुदेश कुमार ऑफ क्लास 9, debate the topic joint family is most appropriate way of life, expressing your views in favor of it in 60 to 80 words। अब देखो स्पीच और डिबेट में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता, आप डिबेट भी वैसे ही स्टार्ट करते हो, मतलब पहले आप जो भी ऑडियंस है उसको एड्रेस करते हो, फिर आप अपना टॉपिक बताते हो। जो मेन डिफरेंस है कि स्पीच में आपने अगर एक टॉपिक लिया तो आप उसके गुड पॉइंट्स भी बताते हो, आप उसके बैड पॉइंट्स भी बताते हो। लेकिन डिबेट में क्या होता है कि हमने अगर हम उस टॉपिक के फॉर बोल रहे हैं, उसके फेवर में बोल रहे हैं, तो हमको अपनी पूरी स्पीच में उसके फेवर में ही डिबेट के अंदर उसके फेवर में ही बोलना है, और अगर हम उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं तो हमको उसके अगेंस्ट ही बोलना है। अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन किया है तो ऑफकोर्स आपको उसके अकॉर्डिंग बोलना, नहीं किया है तो आप पर्टिकुलर एक चीज़ लोगे, या तो उसके गुड इफ़ेक्ट्स या उसके बैड इफ़ेक्ट्स। अब जैसे इसके अंदर क्या है, इसमें आपको फेवर बताना है, आपको जॉइंट फैमिली के जो फेवर्स है, जो गुड पॉइंट्स हैं, आपको उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है फॉर डिबेट। व्हाट इट ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ इट इज़ 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17th क्वेश्चन के अंदर है, मनीष मानवी इज़ लेट फॉर स्कूल, टीचर स्टॉप्ड हिम फ्रॉम एंटरिंग द क्लासरूम, प्रिपेयर अ डायलॉग इन 50 to 70 वर्ड्स एक्सचेंज बिटवीन देम विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन। अब डायलॉग कैसे होता है ना, पहले हम लिखेंगे टीचर वाई आर यू लेट, फिर उसका कि आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक, ऐसे करके आपको 10 एक लाइन्स के अंदर आप एक डायलॉग सा फॉर्म कर दोगे, जो आप नॉर्मली आपको पता है जब स्टूडेंट लेट है तो टीचर उसको क्या बोलेगा और स्टूडेंट उसको क्या जवाब देगा, और फर्स्ट पर्सन के अंदर ही हम ये लिखते हैं। इसके साथ जो ऑप्शन है वो है कंपोज स्टोरी, है ना, सिंपल से कहानी बनानी है आपको ऑन द आउटलाइंस गिवन बिलो। टाइटल और मोरल भी आपको लिखना है, आप जो स्टोरी लिख रहे हो आप उसको एक हेडिंग दोगे, उसका टाइटल दोगे, और उस स्टोरी का जो मॉरल है वो आप लिखोगे। कैब सेलर विलेज, अच्छा अब ये स्टोरी देखते ही आपको मतलब मोस्ट प्रॉब्स आपको वो स्टोरी आपकी सुनी होगी, पढ़ी होगी, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टोरी बता दोगे। नहीं, आपको जो आउटलाइंस दी हुई है उनके अकॉर्डिंग आपको अपनी एक स्टोरी फॉर्म करनी है, हेडिंग देनी हो, और उस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है आपको ये भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा रीडिंग राइटिंग पार्ट था वो ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं सेक्शन सी पे, जो कि है हमारा ग्रामर पार्ट, वो भी है 16 मार्क्स का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। तो हमें ये वर्ब्स की फॉर्म्स हैं, ही डैश टू सी मी लास्ट वीक, विमला डैश फॉर 2 hours, द सिटी हा। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, बीच में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। ठीक है, वर्ब्स हम कर चुके ऑलरेडी। सेकेंड है फिर
फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये जो है ना सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड जो हमने किया था उसके अकॉर्डिंग आपको लगानी है। तो इसके अंदर भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से आपको जो रूल है उसको फॉलो करते हुए अपनी जो ये यहाँ पे जो वर्ब है उसको पुट करना है। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स में भी आपको जो है ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपको उन दोनों में से कोई एक ऑप्शन, जब क्योंकि आप रूल्स पढ़ चुके हो, आप इतने एग्जाम्पल्स कर चुके हो, एक्सरसाइजेस कर चुके हो, तो उनके अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर्स जो है यहाँ पे पुट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव टू फिल इन द विथ सूटेबल प्रीपोजिशंस, है ना। तो प्रीपोजिशंस में भी आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, जो आपको मोस्ट सूटेबल लगती है उसमें से आपको इसमें फिल करना है। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड अ वीडियो ऑन प्रीपोजिशंस, तो आपको पता है क्या रूल्स हम क्या लिख के फॉलो करते हैं, कैसे हमको पता चलता है कि हमको कहाँ पे क्या प्रीपोजिशन को यूज़ करना है। तो इतना सा ही जो हमारा ग्रामर पार्ट आ रहा है ना, बहुत सिंपल है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी जो है 32 मार्क्स का है और वो हमारी कौन सी बुक से है, सप्लीमेंट्री बुक से है। ठीक है, सप्लीमेंट्री बुक से, तो जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसमें हमें हमारी सप्लीमेंट्री की बुक से एक पैसेज आ रहा है जिसको हम बोलते हैं सीन पैसेज। उसमें से किसी भी चैप्टर में से एक जो पैसेज आ गया है, ठीक है। अब जैसे हमको ये पैसेज पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये ब्रूनो वाले चैप्टर का है, ठीक है। और आपको ऑप्शंस, आप चैप्टर आपका पढ़ा हुआ तो आपको ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से और आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। अपने क्वेश्चंस आपको चैप्टर से रिलेट नहीं करने हैं, आपको जो पैसेज दिया उसी से रिलेट करके आपको अपने आंसर्स देने हैं। आंसर आपको 1 या 1.5 लाइन के अंदर ही देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आंसर एनी 2। अब आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन आंसर करने, और आपकी वर्ड लिमिट कितनी है, 30 वर्ड्स। 30 वर्ड्स के अंदर आपको देने हैं। जब संतोष सेंट टू लोकल स्कूल, टू व्हाट हैड द स्नेक बीन कंपेयर्ड एंड वाई, व्हाट डिड कीजिया प्रिपेयर अ पिन कुशन, वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर काउंटी इंस्पेक्टर। तो इनमें से आपको सिर्फ कोई भी 2 क्वेश्चंस करने हैं जो आपको 30 मार्क्स वर्ड्स के अंदर जो है वो लिखने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 24 है राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका आ जाए 60 वर्ड्स का, और आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं, उनमें से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। व्हाट डू यू नो अबाउट अब्दुल कलाम्स पेरेंट्स, या प्रेजेंट कॉन्ट्रास्ट इन ऑथर्स रूट फॉर कमिंग बैक होम। ये काठमांडू वाले चैप्टर से आपको क्वेश्चन आ गया है, ये 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन 25 है, आपको एक स्टेंजा दिया रहेगा किसी भी पोएम का, और आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना है। आप कैसे लिखते हो, आप पहले लिखते हो रेफरेंस, फिर आप लिखते हो कॉन्टेक्स्ट, और फिर आप लिखते हो एक्सप्लेनेशन। 3 फॉर्म इसमें लिखता है। रेफरेंस के अंदर हम ये कौन सी पोएम से लिया गया है, पोएम हमारी कौन सी बुक में दी गई है, और इसका पोएट कौन है। तो आपको अपनी सारी पोएम के नाम और पोएट और उसकी लाइनें जो पता होनी चाहिए। और फिर हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर पूरी पोएम के बारे में समराइज़ करते हैं कि इस पोएम में क्या था क्या नहीं था। एक्सप्लेनेशन के अंदर हमें जो 4 लाइनें दी हुई हैं इनका हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इनको, और ये हमारा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है 3 मार्क्स का। उसके बाद में है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको 3 क्वेश्चन दिए जिनमें से आपको 2 क्वेश्चंस, ये आपकी पोएट्री सेक्शन के क्वेश्चंस हैं, उसको आपको अटेम्प्ट करना है। हाईलाइट द मैसेज ऑफ द पोएम, पोएम कौन सी है, द रोड नॉट टेकन। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कौन सी पोएम है, विंड। हाउ डज़ द पोएम कंक्लूड, रेन ऑन। तो आपको सेंट्रल आइडिया जो है पोएम की थीम, वो सब आपको एकदम ध्यान से वो क्वेश्चन एक बार आप देखिएगा। फिर है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, जस्टिफाई द टाइटल द लास्ट चाइल्ड। 3 मार्क्स का, मतलब इसमें से आपको कोई एक करना है, आपको 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे। ड्रॉ द वर्ड पिक्चर ऑफ महेंद्र, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। What did the beggar look like? How long did it take to fight the fire? Who was finally blamed for the crime? How did Toto behave with the author's aunt? तो इसके साथ ही हमारा जो पेपर है बहुत एक सिंपल पेपर आने वाला है और इजी पेपर आने वाला है। हमारे को चैप्टर्स अच्छे से पढ़ना है। हमारे ग्रामर को एक बार हम रूल्स को अगर हम पढ़ लेते हैं और अपने जो अनसिन पैसेजेस उनको थॉरली पढ़ना है, लेटर, ईमेल और स्पीच, डिबेट और स्टोरी और जो हमारा डायलॉग है, इतना ही हमारा ग्रामर रिटन पार्ट के अंदर आ रहा है। उनका एक बार आप फॉर्मेट देख लो तो आपको आउटलाइंस दी रहती है, हेल्प जोन दिया रहता है, तो बहुत ईजिली आप अपना पेपर जो है कर सकते हो। एंड इट इज़ वेरी ईजी फॉर आई होप ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स टू स्कोर above 80 इन इंग्लिश स्पेशली, है ना। एंड ऑफ कोर्स
more than I think 50 students are there who can score above 90 also, but for all students I think in such a paper each and every student of my class can score above 80 marks. So this is my expectation from you and you have to work hard on it. अब आपको क्या करना है, इस पेपर को अपनी कॉपी में नोट डाउन करो. हमारे सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, तो आप उनको इस पेपर को एक बार सॉल्व करो सो दैट यू हैव एन आइडिया ऑन हाउ यू आर गोइंग टू डू योर पेपर ऑफ 9th क्लास दिस ईयर. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. कोई भी इश्यूज़ हो, कोई भी क्वेरीज हो, यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क मी. हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू.